Very good afternoon, class. So last time we discussed about the Philadelphia Conference. Today in class, I'm going to discuss with you about the Minnowbrook Conference. What was Minnowbrook Conference? Actually, Minnowbrook Conference first held in 1968. I tell you the background story, what actually happened in public administration, why like it became compulsory to held the Minnowbrook Conference. Actually, what happened in 1960s, there was war between America and Vietnam was going on. Okay, so it was a war situation. You know that every time a war happens, countries get affected, right? You have seen how Russia and Ukraine have badly affected due to war. Though Russia is very strong country, but still it got affected very badly because they because of war you lose so many lives, है ना? You lose so many young human assets. You lose so much of your money and you lose so much of your resources. So you lose so much thing that a country get affected very badly. So when in 1960s Vietnam and America war was happening, though America got declared as a powerful country at that time, or America won the war, but one thing happened, that America found that there is literal great loopholes in his public administration. Okay, so finding those loopholes, they all decided uh, to have a conference like a Minnowbrook conference, so that so that's way they can do some major changes in the public administration. Okay, so we were discussing about new public administration, and Minnowbrook conference was actually responsible in many way for the emergence of the new public administration. Okay, so we are going to talk you about today about the new public about the Minnowbrook conference. So I'm going to talk with you about the first Minnowbrook conference. Okay, तो फर्स्ट मिनोब्रो कॉन्फ्रेंस की मैं बात करूंगी एक्चुअल में हम कंपैरिजन करके. ओके, सो वी विल कंपेयर द फर्स्ट एंड सेकंड मिनोब्रो कॉन्फ्रेंस, फिर कंपैरिजन करके हम चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, तो वो बहुत सही रहेगा. ओके, सो okay, so this is about all about the first Minnowbrook conference, and this is all about the second Minnowbrook conference. क्वेश्चन कैसे बन सकता है इन 10 मार्क्स क्वेश्चन? यू कैन बी आस्क्ड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट Minnowbrook conference and second Minnowbrook conference, what were the features of the first Minnowbrook conference. In 5 marks question, throw a light on the Minnowbrook conference, है ना? तो आप like you can explain about first Minnowbrook conference, second Minnowbrook conference, third Minnowbrook conference in that way. Okay, so like this question can arise. So how would you write these answers? See, these are the features of Minnowbrook conference, or as well as these are the comparison between Minnowbrook first and Minnowbrook second conference. Okay, so if you see here Minnowbrook first conference, its composition was narrow in the sense the participant had political science background. Okay, see, I already told you that at that time they were actually thinking that political science is actually linked between administration, public administration. There is no separate or segregated subject like the public administration. They were thinking like this, right? So its composition was narrow in the sense that participant had a political science background. Its mood, tone, temper, orientation was contentious, confrontational, radical, and revolutionary. It does mean in that conference they were not ready to accept about the, like, they were not ready to accept the old things, right? They were not happy with the old political science situations, because in America when war was happening, America also found that there is so much loopholes in his own public administration. So they were actually not ready to accept all kind of old kind of administration. They wanted very new kind of changes. Okay, so there was a like radical changes they wanted. They were kind of revolutionary at that time, who emphasized that we want a new kind of administration with new kind of features. Okay, we
are not happy with old redundant administration. So they were in very revolutionary, the people who wanted changes in it were at that time very मतलब बहुत revolutionary type सी thinking हो रही थी. जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में आपने देखा था कि बहुत सारे लोग एकदम से बहुत रिवोल्यूशनाइज हो गए थे कि ओल्ड जो टाइप का आपका कैथोलिक चर्चेज है या आपका ओल्ड टाइप का जो भी सिस्टम सोसाइटी का चल रहा है, दे आर नॉट हैप्पी विद दैट. सो एक रेडिकल चेंजेस आए थे सोसाइटी में. इन दैट वे, सेम वे दे वांटेड रेडिकल चेंजेस इन सोसाइटी. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो हमने फीचर्स वैल्यूज पढ़े थे, दे एम्फसाइज्ड ऑन दैट, लाइक सोशल इक्विटी दे वांटेड, राइट. They wanted values, they wanted relevance, they wanted changes, they wanted client focused things, right? We already talked about what is client focused things, right? Because we are customer of the country, or we are the citizen of the country also, okay? So our government is providing to like services to us, right? So there was a kind of social equity, client focused things, relevance, values, right, changes, everything was going on like that. Okay, then it was decidedly anti-behavioral. Anti-behavioral in the sense that whatever was going on, they were not happy with that. Okay, they were saying that there should be proper way of doing everything. It should not be like कि अच्छा ऐसे हो गया काम, ऐसे हो गया, मतलब they were not happy कि कुछ भी चीजें अरेंज नहीं थी. तो they were not happy with it. They wanted कि everything should be very arranged, everything should be in a sequence manner, in a composition manner. सब कुछ एक proper hierarchy हो, प्रॉपर लोगों की प्रॉब्लम सुनी जाए, एवरीथिंग दे वांटेड, है ना. सोशल इक्विटी, इट डज मीन दे वांटेड दैट देयर शुड बी गुड वर्क फॉर द अंडर प्रिविलेज पीपल आल्सो, राइट. So it was anti-behavioral, and moreover, social environment was marked by strong cynicism toward government. They were not happy whatever government was doing. Okay, they challenged the public administration and just wanted that major social issues should be taken. Okay, they wanted that government is not taking seriously the major social issues. At that time when the war happened in between America and Vietnam, then the America people were not happy with all these kind of war. They were saying that we are losing so much human resources, and our problem is not being listened by like American president or American democracy or American government. So they were not happy with that time, and at that time they wanted that there should be major public administration changes. And you know, in 1962 only, like Ford sponsored for the kind of comparison of public administration. So many things were going on in 1960s and 70s for changes in public administration. It was the kind of period of crisis, and at that time they were not happy, like I would say identity of crisis. They were very confused about the public administration. Some were linking it with the old political science. Some were saying no, it's a new subject. So there was kind of dilemma situation, and जब बहुत confusion create हो जाता है society में, it give rise to the chaos also. So that chaos, to pacify that chaos, this Minobro conference held first time, and when it held, the background was like very sturdy and very, the things were very imbalanced and people were in radical mood, है ना, कि अब तो सब कुछ चेंज करना है. So they wanted all these things जो हमारे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो हमारे फीचर्स हैं, they wanted all those things. Okay, they wanted proactive major social issues should be talked about. That government is not enough taking care of the major social issues. तो वो उनकी बात कर रहे थे, गवर्नमेंट इन सब इश्यूज का ध्यान में नहीं रख रही है, गवर्नमेंट इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट. सो दे वर नॉट हैप्पी विद हाउ गवर्नमेंट वाज वर्किंग. ठीक है. तो now if I go toward the Minobrook second, so after many years, literally after, actually it was pre-decided कि ठीक है, after 20 years we will do the Minobrook conference, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. 1998 के अंदर फिर Minobrook conference हुई. एंड यहाँ पे क्या था, पहले तो देखो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड था. ओके, बिकॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉपर उस टाइम बर्थ नहीं हुआ था, राइट. सो everything was linked with the political science only. But now in 30 years so many changes got held.
public administration has become a new stream, proper stream subject. Many universities like open the departments for the public administration. Many researches happen in the era of the in the field of the public administration. Many things happen in between in 30 years. So naturally now the things got widened. Okay, how the composition was not only concerned toward the political science, the background only. Now public administration is itself a proper subject, is itself a subject which was being taken seriously, like which was taken seriously. जैसे public administration आपका UPSC का एक ऑप्शनल है, आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आपका RS में भी आपका ऑप्शनल जब होते थे तब वो है. अभी अगर आप देखो तो 70 मार्क्स का एक प्रॉपर सब्जेक्ट है आपका, 70 to 80 मार्क्स का. सो ऑल दीज थिंग्स, न्यू चेंजेस स्टार्टेड बिगिनिंग इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, तो इसका मतलब इसका जो कंपोजिशन था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत वाइड हो चुका था. हाउ लाइक दैट पीपल ट्रेन्ड इन लॉ, पीपल इन इकोनॉमिक्स, प्लानिंग, policy, policy analysis, policy studies, urban studies, all these things happening started happening. Like हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया है ना, राइट. सो नीति आयोग आया. तो पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज कंसर्न्ड अबाउट द पॉलिटिकल साइंस ओनली. अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज taken part in our economics also, our defense also. If you go in any kind of department, whether it's defense, whether it's economics, right, or whether it's food department, right, in any kind of department if you go now, then you will find that public administration has presence in each and every department, right. And there is proper hierarchy system, there is a proper goal that how they have to work, और उनको लोगों के लिए काम कैसा करना है. So they have their own proper goal and they are working according to that. So if you go toward that, you will find that public administration is properly going, properly working, and properly चीजें public administration के अंदर हो रही है. आपको ये चीज you will find that. अभी क्या है, mood, tone, temper and orientation was more civil, more practical. Here people were not very much concerned about the मतलब अभी उस टाइम क्या था कि पॉलिटिकल साइंस के बारे में वो जानते थे, अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दे हैड नो नॉलेज. सो ओके, सो दे वांटेड न्यू काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो उनको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था, तो दे वर वेरी रेडिकल, रिवोल्यूशनरी, दे वर मोर ऑफ बार्बरिक एट दैट टाइम. देयर वाज सिचुएशन ऑफ एनार्की एट दैट टाइम. But now public administration has expanded in all of the world. Now people are kind of civil mannered, okay, was more practical, because they were new policy makers, they were making policies, they were implementing policies. So they were like in a solution finding mode कि अच्छा ये है प्रॉब्लम तो इसमें हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ये प्रॉब्लम है तो इसमें हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. इन एवरी वे दे वर जस्ट इन अ मूड ऑफ सोल्यूशन फाइंडिंग, कि कुछ भी है हम सोल्यूशन को फाइंड करने की कोशिश करेंगे. ओके, सो दिस वाज द थिंग. They were more pragmatic, they were less radical and more respectful senior professionals. Okay, so they were more of the pragmatic, बहुत ही ज़्यादा practical होके they were thinking, है ना. They were more pragmatic, they were less radical. अभी क्या है कि जब तक you are not properly trained, you are not properly working, तो अभी क्या है कि आपकी thinking बहुत ही ज़्यादा radical रहती है ना. You don't try to find the solution. You always think कि नहीं इसको completely change कर दो. एक radical minded person, how radical minded person work, he always wanted complete change, कि इसको completely change कर दो. We don't want this thing, just completely change it. ऐसा होता है. जैसे अग्निवीर स्कीम है, so when अग्निवीर scheme came, people were like radical minded कि no, we don't want this scheme, please discard the scheme, please change the scheme altogether, है ना. But a civil, a pragmatic, a practical mind of person would think कि problems ढूंढो कि what's the problem in this scheme and how we can do do the changes in the scheme. कि actual scheme में problem क्या है, मतलब अगर कुछ problem है तभी तो उसमें changes करो ना. there is no need of doing changes all together कि अच्छा scheme को पकड़ो और no पूरा change कर दो, scheme को बंद ही कर दो, ban कर दो. so always radical minded people always think कि ban कर दो, खत्म कर दो, change कर दो. but the people who are civil minded, they always think that we can make new changes, we can create new policies, we can create new solution and we can replace it with something new, better thing.
है ना. तो रेडिकल पीपल आर काइंड ऑफ making calls at that time, but now people were more professionals and more of like civil people. They were like taking problem seriously. फिर problem को solve करना है. Professionals वहाँ पे बैठे थे, senior professional, junior professional. There was a proper code of conduct, proper etiquettes. तो Minobro conference, which was happened at the first time and which happened at the second time, there was a difference of day and night, है ना. So इसका मतलब जो ये चीजें ये लोग चाहते थे कि एक प्रॉपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश हो. दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गॉट एस्टैब्लिश्ड विद दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गॉट एस्टैब्लिश्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिस न्यू काइंड ऑफ generation came out. The generation which was more civil, which were more pragmatic, which was more practical, and which was doing more work toward the economy, defense, home ministry, under home ministry or anything. The work was going in a very good way. Okay, so now what happened, they were like talking about the social equity change or whatever the things which we were talking about the new public administration, right? But now they have expanded their they have expanded their basket कि नहीं अभी सिर्फ इतना नहीं चाहिए, we want more. They emphasized on the leadership, constitutional and legal perspective, technology policy and economic perspectives. It laid emphasis on the leadership, constitutional, legal perspective. Okay, so in that way they try to emphasize that we want something more related to technology. क्योंकि अभी जैसे टेक्नोलॉजी आई है तो टेक्नोलॉजी ने ट्रांसपेरेंसी लेकर आई है, ठीक है. दे वांटेड सम मोर चेंजेस इन इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव. इट डज मीन दे हैड लेस डायमेंशन बट दे हैव मोर डायमेंशन. दे हैव सेग्रीगेटेड थिंग्स. अभी जैसे यहाँ पे सीधा लिखा कि क्लाइंट फोकस, बट दे हैव actually elaborated that what is client focus, कि client को क्या चाहिए. Client want employment, right? Client want a pure society, clean society, criminal crime free society. ये सारी चीजें they discussed over here, that we want technology policy so that there should be more transparency, less corruption over there. We want more economic perspectives so that more and more people become the part of economy. They wanted this. Okay, they emphasized on the leadership, that there in a public administration there should be a proper leader who is actually regulating the things, है ना. क्योंकि जिसके पास में अकाउंटेबिलिटी सेट होगी और जिसके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो हम थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं कि ठीक है ये बंदा हमारा लीडर है, राइट. So they wanted things like in a constitutional way and they wanted things in a legal perspective की चीजें मतलब एकदम legally काम कर रही है. Okay, ऐसा they wanted. It was more perspective to the contribution of the social and behavioral science to public administration. It was more perspective to the contributions of the social and behavioral sciences to public administration. Okay, तो अभी क्या है, अभी सोशल बिहेवियरल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आपने बिहेवियर पढ़ा होगा, राइट. सो इन बिहेवियर वी डिस्कस्ड अबाउट द थिंग्स समथिंग रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, कि जैसे पर्सनैलिटी, वी टॉक्ड अबाउट द पर्सनैलिटी. तो पर्सनैलिटी कैसे आपको इफेक्ट करती है, आपको आगे वर्किंग में कैसे इफेक्ट करेगी. स्ट्रेस आप जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में जाओगे, हाउ यू वुड गेट स्ट्रेस ऑल्सो. मतलब ये सारी चीजें आपको इसीलिए पहले बताई जा रही है बिकॉज देर आर थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ थिंग विच इज एक्चुअली फुल ऑफ स्ट्रेस. क्योंकि आपको पूरी कंट्री के लिए काम करना होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, बहुत सारी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. सो इन दैट वे यू ऑलवेज हैव टू वर्क, राइट. सो अभी क्या है, दैट जनरेट स्ट्रेस एंड अ गुड पर्सनैलिटी कैन ओनली कैन वो सारी चीजें एक स्ट्रेस को खत्म कर सकती है अगर आपके पास में प्रॉपर इंटेलिजेंस है. and that intelligence also emotional intelligence kind of things there, then also you can you can find solution very easily, right. तो अभी क्या होता है,
it was more perspective to the contribution of the social and behavioral science to public administration. अभी ये लोग एंटी बिहेवियरल थे, उनका कोई ऐसा दिमाग में था नहीं कि प्रॉपर एक बिहेवियर सेट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, बस वो उस टाइम चेंज चला रहे थे, बट दे वर नॉट नोइंग कि कुछ प्रॉपर एक तरीका होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का, ऐसी हिरार्की सेट होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, मॉडल ऑफ कंडक्ट होना चाहिए. दे वर नॉट नोइंग अबाउट दैट, बट हियर पीपल आर मोर ऑफ सिविल. So they wanted a proper, social behavioral. They proper wanted social science participation in their public administration, right? Behavioral science participation. If you see closely ना, तो बिहेवियरल जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, या जब आप सोशियोलॉजी को एज अ 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटीज दैट इन दैट, बिकॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द social science and behavioral science. Okay, the psychology of the people and the behavioral of the people and the behavior of the society, वो सारे perspective में social science मतलब जो भी था वो अच्छे से public administration इन चीजों को ध्यान देने लगा था. So Minobrook conference, I would say it was a very advanced conference on the public administration. It was like birth for the public administration. It was responsible for kind of birth for the public administration, but Minobrook conference was kind of very advanced in that term. Okay, fine. So our last topic here is social environment was marked by a growing demand for retreat of the state in form of governmental cutback, privatization, voluntarism, social capacity building, a third party government, a retreat from an action perspective. Okay, they wanted a new kind of government कि अच्छा कि if there some problem तो गवर्नमेंट को कुछ नया उसमें चेंजेस करना चाहिए, गवर्नमेंट में चेंजेस आने चाहिए, how things were going on. Okay, so अभी they wanted that state in the government should cut back the things which are not working. अच्छा, if some department is not doing good and for welfare for the society, उसको कट बैक कर दो. ओके, प्राइवेटाइज कर दो चीजों को, ठीक है, थिंग्स शुड बी प्राइवेटाइज ओनली चीज, ठीक है, कि अगर इफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट डूइंग प्रॉपरली, मतलब अगर आपकी पीएसयूज आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आर नॉट डूइंग प्रॉपर वर्क, तो उनको या तो डिसइन्वेस्ट कर दो, पूरा का पूरा ही बेच दो, या उनको कुछ शेयर्स प्राइवेटाइज कर दो उसको कुछ हद तक, या उसको बंदी कर दो. मतलब दे वांटेड समथिंग लाइक दैट कि या तो उसको आप बिल्कुल बेच ही दो, खत्म ही कर दो, या तो उसको आप प्राइवेटाइज कर दो कि मतलब ठीक है किसी प्राइवेट कंपनी को आप दे दो, या तो उसका बिल्कुल आइडेंटिटी खत्म कर दो, प्राइवेट कंपनी को उसके शेयर्स दे दो, या कंप्लीटली प्राइवेट कंपनी को दे दो चलाने के लिए. तो दे वांटेड, नाउ दे वांटेड लाइक दिस. दे वर सेइंग दैट दे आर नॉट हैप्पी with the corruption things in going in the public sector units. Still you are running the public sector units, अब वो लॉस में भी जा रही है, तो पैसे किसके हैं? टैक्स पेयर्स के तो पैसे लग रहे हैं ना. So they wanted कि नहीं, अभी we want awareness in that like in that way. So if there's some loopholes in the public administration, if still corruption, nepotism and all things are going in public sector units, if they are going in मतलब in losses, तो उनको बेचो और उनको प्राइवेटाइज करो. They wanted more of voluntarism. आजकल वॉलंटरिज्म वाली चीजें काफी हो गई है. इन डिजास्टर मैनेजमेंट ऑल्सो दे कॉल फॉर वॉलंटियर्स, है ना, जो आए और मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करे, जब ऐसी कोई आपदा आ जाए तो हेल्प करे. नाउ यू हैव वॉलंटियर टीचर्स ऑल्सो इन गवर्नमेंट स्कूल्स. सो द वॉलंटरिज्म थिंग गॉट अराइज्ड. ओके, एंड सोशल कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे बिल्ड होगी? दे वांटेड प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स, ओके, विच बिकम एसेट फॉर द सोसाइटी. ओके, the human source should not be disturbing, should not be like कि अच्छा कुछ कर ही नहीं रहे कंट्री के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. We are the youngest है ना, we are the most youngest nation in the world, but if we become burden for the society, then we are zero. अगर हम सोसाइटी के लिए बर्डन बन जाते हैं तो हम पूरे जीरो बन जाते हैं, ठीक है. तो वी शुड नॉट बी बर्डन फॉर द सोसाइटी, ठीक है. तो ऐसा उन्होंने बोला कि हम लोगों को सोसाइटी के लिए बर्डन नहीं बनना, हम लोगों को सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम नहीं बनना है. तो उन्होंने ये चीज दे वांटेड कि हमें सोसाइटी के लिए एक प्रॉपर हमें सोसाइटी के स्ट्रेंथ बनना है. तो दे वांटेड दिस. अभी सोशल कैपेसिटी बिल्डिंग एंड देन थर्ड पार्टी गवर्नमेंट.
it treated from an action perspective. Third party government in the sense that they wanted kind of मतलब कोलिशन गवर्नमेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, या उनकी इस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए जो पूरी एक्शन मतलब ओरिएंटेड गवर्नमेंट हो. ओके, राइट. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट action perspective. We were discussing about action perspective. So they wanted things should be action perspective. सिर्फ theories में बातें मत करो कि जैसे हम fiscal policy बनाते हैं every year, तो we always says कि अच्छा इस कमीशन ने ये सिफारिश दी है कि that fiscal policy should be controlled like that 4% या 5% of GDP होना चाहिए, है ना. ये सारी चीजें we always discuss. तो they wanted कि don't talk like that कि ऐसी फिजिकल पॉलिसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. वी डोंट वांट एनी टॉक ओनली कि अभी आप सिर्फ बातें कर रहे हो. हमको ऐसा नहीं चाहिए कि आप सिर्फ बातें ही बातें करो. वी वांट एक्शन ऑल्सो. एंड दे वांटेड थर्ड पार्टी गवर्नमेंट इन द सेंस कि यूनाइटेड स्टेट्स में देवर प्रिडोमिनेटली 2 पार्टीज, है ना. तो पहली पार्टी है, इनके पास मतलब 2 ही ऑप्शन है. जब आपकी पार्टीज के ऑप्शन कम होते हैं ना, तो इसका मतलब दैट पीपल आर लाइक मजबूर कि ठीक है, अगर एक पार्टी अच्छा नहीं कर रही है तो फिर दूसरी पार्टी को दे दो, वो भी दूसरी अच्छा नहीं कर तो एक पहली पार्टी को वोट दे दो. सो दे डोंट हैव मोर ऑफ ऑप्शंस. अब जैसे आप पार्टी है तो आप इज रियली डूइंग कमेंडेबल वर्क इन टर्म ऑफ एजुकेशन, इन टर्म ऑफ हेल्थ. दे आर डूइंग एक्चुअल वर्क इन द सोसाइटी. ठीक है, तो नाउ पीपल हैव थर्ड ऑप्शन ऑल्सो, है ना, कि ठीक है यार, दैट बीजेपी इज मोर ऑफ रेडिकल गवर्नमेंट, ऑलवेज टॉक अबाउट धर्म धर्म धर्म. कांग्रेस इज फुल ऑफ करप्शन, हैज ऑलवेज कांग्रेस हैज ऑलवेज डन करप्शन ओनली. अभी वाड्रा के केस था, वो इनके घर का ही सन इन लॉ था, तो है ना. तो मैनी ऑफ द थिंग्स, काफी चीजें उनके टाइम में स्कैम्स हुए हैं. तो काइंड ऑफ लोग, द पीपल हैव लॉस्ट द फेथ इन द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द नेशन. बट नाउ पीपल वांटेड न्यू चेंजेस, बट न्यू चेंज के नाम पे आपको रोज धर्म की गुट्टी पिलाई जा रही है. ज्ञानवापी मस्जिद का खोल देते हैं मैटर. अच्छा, ज्ञानवापी मस्जिद में ये हो रहा है, वो हो रहा है. तो सोचो अगर 2 ही पार्टी होगी तो कितने कम ऑप्शन बच जाएंगे. आपको या तो कांग्रेस को वोट देना पड़ेगा या बीजेपी को वोट देना पड़ेगा. यू वुड नॉट हैव अनदर चॉइस. नाउ आप इज एमर्जिंग, सो इट डज मीन अ न्यू वॉइस ऑफ पीपल इज कमिंग आउट दैट दे वांट एक्चुअल चेंजेस, बिकॉज द वर्क व्हिच आप इज डूइंग इन टर्म ऑफ एजुकेशन, जो भी दिल्ली के अंदर एजुकेशन के मामले में रिवोल्यूशनरी वर्क आपने किए हैं 5 साल में, तो 5 साल बाद सेम गवर्नमेंट केम बिकॉज दे एक्चुअली अप्रिशिएटेड द रिवोल्यूशनरी वर्क्स. अभी वी आर 80% हिंदूज, तो इट इज वेरी इजी टू अट्रैक्ट 80% हिंदूज इन नेम ऑफ धर्म कि भाई देखो ये मुस्लिम्स लोग हैं, इन्होंने तो हमारी कंट्री में कब्जा कर लिया, ये कन्वर्ट हो गए, तो हम क्या 80% हिंदूज है, हमारा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हमें ये मस्जिदें खत्म करनी है. ये सारी चीजें बोल बोल के गलत तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करके, इट इज वेरी इजीली टू गेन द वोट एक्चुअल में. बट द रियल पीपल और द इंटेलिजेंसिया वुड ओनली वोट टू दैट पर्सन who would work for the society, because religion is something you can't change. You can't throw out all the Muslims out of the country. You can't throw out the Christians out of the country. We Indian have this quality of being a tolerant country. Okay, we are a tolerant country, and which Muslim is standing against you? He is not Muslim, he is a citizen of India first. Okay, he is not Hindu, he is citizen of India first. जो गलत करेगा चाहे किसी के भी चीज के नाम पर, you just arrest that person and that's all. क्यों एक काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी फैलाना कि यहाँ पे मुस्लिम्स बहुत है तो इसलिए हिंदुज्म पे कुछ हमारा बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, वी आर टॉलरेटिंग सो मच बिकॉज ऑफ मुस्लिम्स. सो दीज काइंड ऑफ थिंकिंग्स, दीज काइंड ऑफ मुद्दे whenever these people take out, and that means that party is actually not working about development, because the party जो डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करेगी ना, दैट पार्टी वुड नेवर टेक आउट ऑल दिस स्टूपिड थिंग्स. दे वुड एवर टॉक अबाउट डेवलपमेंट थिंग कि हमें एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाना है, how we will be able to generate employment. वो मीडिया का सहारा लेके गलत गलत चीजें नहीं फैलाएगी. ओके, अवर मीडिया इज मोर कंसर्न अबाउट ऑल दिस थिंग्स कि अच्छा ज्ञानवापी मस्जिद में ये हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद में ये बातें बोली है, हिजाब केस हो गया है. व्हेन ऑल दीज काइंड ऑफ स्टूपिड टॉपिक कम आउट एंड व्हेन एक्चुअल टॉपिक आर नॉट बीइंग डिस्कस, then that government is not in your favor. I'm not in favor of any government, but I'm just giving you example कि जब 2 ही ऑप्शन आपके पास में बच जाते हैं
तो दोनों अगर पार्टी सही नहीं है, देन ऑल्सो यू वुड हैव टू आंसर दैट. ओके ओके. सो व्हाट हैपन, है ना, तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि हमारे पास अगर दो ही पार्टी होती है तो हमें ऑप्शंस बहुत कम होते हैं. तो अगर दे आर दे आर डूइंग रॉन्ग टू अस, देन वो ऑल्सो कि चलो ठीक है यार, अब दो ही ऑप्शन है तो क्या करें. तो वहां पे अमेरिका में भी क्या है कि थोड़ी ऐसी कंडीशन है, वहां पे दो ही पार्टीज आपको पता है प्रिडोमिनेटली वर्क करती है. सो दे वांटेड सम थर्ड पार्टी कम आउट, एंड दैट थर्ड पार्टी एक्चुअली शुड वर्क फॉर द पीपल, कि ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि फिर फर्स्ट और सेकंड पार्टी भी ट्रैक पे आ जाएगी ना. अभी कांग्रेस कितना ट्रैक पे आ रही है. नाउ कांग्रेस इज गोइंग एवरीवेयर. भारत जोड़ो समथिंग, द मोदी इज डूइंग भारत तोड़ो बाय हिंदू मुस्लिम टॉक ऑलवेज. अगर आपकी कंट्री के अंदर ऑलवेज मुस्लिम्स या हिंदू ऐसी बातें हो रही है, इसका मतलब आपकी कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर रही है. सो मोदी इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, एंड द कांग्रेस इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट व्हाई दे डूइंग हिंदू मुस्लिम, व्हाई दे डूइंग हिंदू मुस्लिम, वी आर द सेक्युलर कंट्री. तो ये दोनों पीपल आर दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली रिलीजन. तो मुद्दे की, नोबडी इज डूइंग मुद्दे की बात. तो अभी आपने मुद्दे की बात करके कुछ ढंग का काम करना शुरू किया है, जहां पे एक पढ़ा लिखा आदमी सोसाइटी को थोड़ा बेटर कर रहा है, तो दैट वुड बी अ गुड थिंग फॉर द सोसाइटी, राइट. सो हियर दे ऑल्सो वांटेड दिस कि अभी थोड़ा गुड थिंग होनी चाहिए, सिर्फ दो पार्टीज नहीं होनी चाहिए, मल्टीपल पार्टी सिस्टम होना चाहिए. लाइक इन अमेरिका दे वर नॉट हैप्पी विद द टू पार्टीज, दे वांटेड कि नहीं, थ्री पार्टीज होनी चाहिए. ठीक है. सो third party government, if third party government come, then automatically first and second party would come on track, right. वो जब तक ट्रैक पे नहीं आते, जब तक उनको पता है कि भैया सरकार तो हमारी आनी है. लाइक मोदी जी ऑलवेज सेज कि भैया 2024 में तो हम ही वापस आने वाले हैं, हम ही वापस आने हैं. सो दे हैव काइंड ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, बिकॉज दे नो दैट कांग्रेस हैव फेल्ड कंप्लीटली. दे कुड नॉट take place in the heart of the people. Okay, so Congress have failed completely. अभी हमारे पास कोई है नहीं, तो we are the predominant one. They are trying कि पंजाब में आप destroy हो जाए. तो जब से आप आई है पंजाब में, after that बहुत सारे वहां पे the kind of राइट शुरू हो गए हैं, काइंड ऑफ that gang system have started there. तो all these things are not good, है ना. तो अभी वी जस्ट वांट थ्री पार्टी. थर्ड पार्टी का क्या फायदा होता है, आई जस्ट लाइक टेलिंग यू, थर्ड पार्टी ये फायदा होता है कि इफ टू पार्टीज आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं अपना सिक्का जमाने के लिए प्रॉपर वर्क करती है, ऐसा होता है. तो दे वांटेड थर्ड पार्टी इन दैट वे. ओके, दिस इज द थिंग वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट Minorbrug Conference first और Minorbrug Conference second. अभी आई एम गोइंग टू टॉक विद यू अबाउट Minorbrug third conference. Okay. So after Minorbrug second conference, they wanted कि अच्छा Minorbrug conference should be held regularly, ताकि जो भी changes इन कुछ सालों में हुए हैं तो हम उस पर मॉनिटरिंग करते रहे. तो in 1998 Minorbrug conference was a success. Okay, now in 2008 they wanted the conference the conference wanted to focus on the new dimension of the public administration. पहले only there was new public administration which got more popularity in 1990s, है ना. 60s और 70s में तो बर्थ हुआ था, लेकिन 90s में उसको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी. तो अभी दे वांटेड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट. तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट मैंने बहुत डिटेल में ई गवर्नेंस क्या है, ठीक है, I discussed everything in very detail. I discussed all the dimensions of the new public management in a lot of detailed manner. ठीक है. तो थर्ड Minorbrug जो आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, it got held in 2008. Now two themes arise for that a theme arise for that Minorbrug conference was the future of public administration, public management and public services. Because of technology advancement in 2000s, so the new kind of a public management came out, a new kind of public services came out, right. So the new kind of future of public administration got arised. The new kind of things started happening in the society. Okay, so new public management was more oriented toward the technology. जैसे ई गवर्नेंस आपकी आ गई है, तो ये सारे आपके डायमेंशंस है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के. पब्लिक सर्विसेज आ गई है, कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच आपकी बहुत ही ज्यादा फोकस्ड और मतलब आईटी बैक्ड हो चुकी है. सो ऑल दिस वर द new kind of the things which were supporting the our new public administration. Okay, so it was organized against the
growing background of neoliberal ideology, advocating downsizing of the government, and opening up more spaces for market and other non-market. Okay, so अभी क्या है, दे वॉन्टेड न्यू थिंग. अभी न्यू लिबरलिज्म क्या है? न्यू लिबरलिज्म मतलब कि वी वॉन्ट लेस गवर्नमेंट, लाइक मिनिमम गवर्नमेंट, मोर गवर्नेंस वाली थिंग. ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग बैठे हैं एक हिरार्की के अंदर, पहले आपकी फाइल इधर जाएगी, फिर आपकी फाइल उधर जाएगी, फिर आपकी फाइल इधर जाएगी, तो आपका क्या है, मतलब सारी आपकी जो फाइल है वो रेड टेपिज्म में फंस गई. ठीक है, सो अभी क्या है, वी वॉन्ट सिंगल विंडो सिस्टम, कि वी डोंट वांट कि अच्छा 4 जगह हमारी फाइल घूमे, एक जगह फाइल को रखा जाए और वो सॉल्व हो जाए. मोस्ट प्रोबेबली अगर आपकी गूगल आपकी मान लो कि इंटरनेट पे चीजें सॉल्व हो जाती है तो वो तो और भी अच्छा. दे वांटेड थिंग्स लाइक दैट. ठीक है, तो डाउन साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड ओपनिंग अप मोर स्पेसेस फॉर द मार्केट. दे वांटेड मोर स्पेसेस फॉर द मार्केट. ठीक है, एंड अदर नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, कि अभी क्या है, वी वांट मोर स्पेसेस, हम एक वी वांट मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच. तो आपकी थर्ड जो मिनब्रू कॉन्फ्रेंस थी वो और एडवांस हो गई थी. नाउ दे वांटेड मार्केट अप्रोच. दे जस्ट डिड नॉट वांट इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन एवरीथिंग, कि भाई हर जगह गवर्नमेंट घुस जाती है हर जगह, और गवर्नमेंट में चीजें इतनी घूम के रह जाती है कि मतलब ग्राउंड तक चीजें आती नहीं है. सो दे वर नॉट हैप्पी विद दैट वी डोंट वांट दैट कि दैट ऑल थिंग्स like remain in the center of government only. The thing should reach toward the people also. Okay, and a complete market approach should be taken by the government for that thing, right? So they wanted some more spaces for the market and non-government agencies. They were just fed up of only government like running everything. Okay, so they wanted मार्केट इंटरफेरेंस, जैसे कैपिटलाइजेशन है अमेरिका के अंदर, वैसा काइंड ऑफ थिंग दे वांटेड, है ना. तो ये एक मार्केट अप्रोच है, वो धीरे धीरे इंडिया तक भी स्प्रेड होती रही. तो मिनोब्रू कॉन्फ्रेंस के अंदर जब सारी कंट्रीज गई तो ये चीजें डिस्कस हुई दैट वी वांट सम मोर मार्केट अप्रोच, वी वांट द सिस्टम ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट, मोर गवर्नेंस काइंड ऑफ थिंग्स, वी वांट ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम. वी डोंट वांट कि अभी इंसान है वो चप्पल मतलब घसता रहे, कोई भी चीज हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो. तो वी वांट प्रॉपर थिंग्स, राइट, वी वांट प्रॉपर थिंग्स. तो थर्ड मिनोब्रू कॉन्फ्रेंस इन द वे वाज काइंड ऑफ डिफरेंट कॉन्फ्रेंस एट दैट टाइम. तो व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड मिनोब्रू कॉन्फ्रेंस? सो व्हाई थर्ड मिनोब्रू कॉन्फ्रेंस वाज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट टू कॉन्फ्रेंस, आई वुड टेल यू हियर. ओके, so it was third Minobru conference. How it was different from the other two conference? It can be your 5 marker question. That how first two conference were different from the last third government conference. So it can be your 5 marker question. तो यहाँ पे आपको कैसे लिखना है? The participants managed to reach a consensus that public administration should have collaboration, interaction, and meaningful engagement with all the stakeholders and is not restricted to government-driven activities. Okay, they are critical for the public administration. They wanted that everything should be happened with in a proper collaboration. Every department should come out. Every department should come out and every department should ज्वाइन हैंड विद द पीपल ऑल्सो, कि लोगों का भी कोलेब्रेशन हो, पार्टिसिपेशन हो. अब जैसे स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सिटी बैंक्स, है ना, ये सब लोग मतलब जो होते हैं ये एक साथ में मिलकर कुछ नया एक वेंचर खोलते हैं. जैसे आपकी आरआरबी है, तो आरआरबी कोऑपरेटिव्स कैसे खुले? कुछ बैंक्स थे, कॉमर्शियल बैंक्स, दे केम आउट, एंड देन स्टेट गवर्नमेंट का कुछ स्टेक था, देन सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ स्टेक था, दे जॉइंट हैंड्स, और उन्होंने बोला कि अब हम एक नए तरह के बैंक्स खोलेंगे, आरआरबी. सो दिस काइंड ऑफ अप्रोच वी वांट नाउ, दैट देयर शुड बी अ कंप्लीट कोलैबोरेशन इन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट. जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, सो it has called for collaboration between finance ministry, collaboration between health ministry, है ना, collaboration between education ministry.
तो all these kind of ministries are coming together for running one scheme in the sense that कि मतलब अभी हमें ऐसे collaboration की जरूरत है, okay, and we want more interaction and meaningful engagement between the all stakeholders. ठीक है, कि सभी stakeholders है उनके बीच में kind of interaction होना चाहिए, उनका approach जो है वो हमेशा की तरह client oriented ही रहे, okay. They wanted कि जो भी मतलब चीजें हैं that should not be only government oriented कि okay government is running anything and things are going and that's all, ऐसा नहीं होना चाहिए. There should be public participation. How when स्वच्छता भारत अभियान came out, so government called to so many companies कि अभी आप लोग आओ, okay. और जैसे हमने अभी पढ़ा था CSC, like we talked about, right, we talked about CSC, social responsibility, है ना. तो we talked about the social responsibility, CSR, sorry, I'm really sorry, corporate social responsibility. तो गवर्नमेंट सेड कि अभी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू कॉर्पोरेट्स को स्वच्छता अभियान के अंदर पैसा खर्च करना चाहिए, ओके. सो फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो कम आउट. सो अक्षय कुमार ने मूवी बना दी टॉयलेट उसके ऊपर, है ना. तो अभी जब वुमेन हाइजीन की बात आई तो लाइक वुमेन के पास में प्रॉपर सैनिटरी नैपकिन्स नहीं होते हैं, तो उसके ऊपर भी इन्होंने पैड करके मूवी बना दी, ठीक है, पैडमैन करके मूवी बना दी. सो व्हाट दे वर डूइंग, दे आर कोलैबोरेटिंग टू अवेयर द थिंग. अभी चीजें ये नहीं है कि ओनली गवर्नमेंट ही सब चीजें करेगी, राइट. यू आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ओके. सो एनी कम्युनिटी लाइक एनजीओज है, तो अभी एनजीओज कल्चर बहुत ज्यादा आ गया है, तो एनजीओज आर वर्किंग फॉर द सोसाइटी. ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट की एक सिरदर्दी रह गई है इस काम को उस काम को करने की. नाउ द एनजीओ शुड कम आउट, नाउ द फिल्म इंडस्ट्री शुड कम आउट, नाउ द लोकल कम्युनिटी शुड कम आउट, नाउ द ट्रस्ट शुड कम आउट, है ना. तो भी स्वच्छता भारत अभियान के अंदर कितने सारे ट्रस्ट ने मिलकर काम किया स्वच्छता भारत अभियान को सक्सेसफुल बनाने के लिए. पीपल ऑल्सो गॉट अवेयर्ड सो मच. लोगों ने खुद अपने पैसे दे दे के टॉयलेट्स बनवाए हैं. People donated the money for the toilets. Earlier they say that earlier we used to like donate the money for the for the like earlier they used to donate the money in the temple only. Now they actually donated money for this thing also. So what is this? This is collaboration, this is participation of the people for making the country great. Only government कुछ नहीं कर सकती if the people are not participating with the government. So government wanted complete so government wanted कि ठीक है हमने कोई चीज शुरू की बट उसको सक्सेस बनाने के लिए पीपल पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है. कंपनीज का पार्टिसिपेशन, हर तरह की इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन. वी वांट एवरी काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन टू मेक अ थिंग सक्सेस, ओके. सो थर्ड ब्रूक कॉन्फ्रेंस में ये सारी चीजें डिस्कस हुई थी विच वाज नॉट डिस्कस्ड इन द अर्लियर टू कॉन्फ्रेंसेस, ओके. सो नाउ दे वांटेड कि सिर्फ और सिर्फ इट शुड any policy or any activity should not be कि मतलब गवर्नमेंट ने चला दिया और बात खत्म, अभी सब गवर्नमेंट जाने, गवर्नमेंट का काम जाने, ऐसा नहीं होना चाहिए. थिंग शुड बी कि अच्छा मतलब कि गवर्नमेंट ने ठीक है एक अप्रोच लिया है, गवर्नमेंट हैव स्टार्टेड समथिंग, नाउ द पीपल शुड पार्टिसिपेट, कम आउट एंड शुड सॉल्व द मैटर इन द फेवर ऑफ द पीपल, ओके. सो दिस इज समथिंग अबाउट द our third Minobro conference. They wanted new kind of approach. Fine. The discipline has thus become both a scholarly enterprise and also a well designed and a goal oriented discipline. ओके. सो अभी क्या है कि जैसे स्वच्छता भारत अभियान था, इट वाज अ कंप्लीटली वेल डिजाइन थिंग, है ना. अब जैसे अभी अपना सौर ऊर्जा है तो भी वेरी पॉपुलर, है ना. पीपल आर मतलब बार बार घर के मतलब ऊपर सोलर ग्रिड्स लगा रहे हैं. जो लोकल योगा ग्रुप्स हैं, लोकल योगा ग्रुप्स अवेयरनेस फैला रहे हैं कि दैट हाउ सोलर एनर्जी इज सो गुड फॉर अस, okay. That how it would stop the pollution in the society or pollution in the country or in the world, है ना. तो how can we become a responsible citizen by मतलब इसको लगाने के बाद में एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम कैसे बन जाएंगे, एवरीथिंग, है ना. अभी बहुत सारी इस चीज के ऊपर चर्चा हो रही है, दे आर टॉकिंग अबाउट दैट, है ना. अभी इवन इन द if you go to the भक्त पंडाल also, है ना, in भक्त पंडाल also people जो बाबे होते हैं, दे स्टार्टेड, जो गुरुज होते हैं, दे स्टार्टेड टेलिंग अबाउट द मतलब वो अर्लियर उनका काम क्या था, रिलीजन को फैलाना.
नाउ दे आर स्प्रेडिंग अबाउट द सोसाइटी थिंग ऑल्सो। अभी एक नया टाइप का कल्चर बन गया है कि बाबा इज नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू द गीता, to the Bhagavad Gita, to the Shiv Puran, to the Ramayan. He is, spreading knowledge about the society. He is spreading the social issues also. So in a way, you can say that so many groups are now joining government to run a thing. ठीक है, तो चीजें अब काफी डिफरेंट थी पहले से. नाउ अवर लाइक डायमेंशंस आर स्प्रेडिंग, और मतलब पीपल की अवेयरनेस आर स्प्रेडिंग. तो बहुत सारी चीजें अभी, पीपल पार्टिसिपेशन इज स्प्रेडिंग. सो अर्लियर दे वर नॉट ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, but now a kind of different society we are finding now. It is everything is well designed, so things are in phases. अभी पहले क्या है कि दे सी कि फर्स्ट फेज के अंदर जैसे ग्राम सड़क योजना है, सो इन फर्स्ट फेज हाउ मच प्रोग्रेस दिस ग्राम सड़क योजना डिड, and then in second phase how much progress this gram sadak yojana did. Okay, so in that way हमारे जो goals है वो achieve हो रहे हैं. in अर्लियर हम ऐसे कोई बड़े फेजेस नहीं बनाते थे. नाउ वी आर मेकिंग स्मॉल फेजेस, और उन फेजेस के अंदर अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है, मतलब जो चीजें हैं वो सक्सेसफुल होनी चाहिए. वी आर ट्राइंग हार्ड फॉर दैट, है ना. तो फॉर द मीनिंगफुल सोल्यूशन टू द ह्यूमन प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, मीनिंगफुल सोल्यूशन के लिए चीजें होनी चाहिए. नाउ एडॉप्शन ऑफ ए ग्लोबल अप्रोच टू पब्लिक गवर्नेंस टू अंडरस्टैंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस. adoption of global approach to public governance to understand proper functioning of the institutions. तो मतलब अभी क्या है कि मिनोब्रो कॉन्फ्रेंस में व्हेन ऑल द कंट्री पीपल पार्टिसिपेटेड, दे वांटेड कि अभी आप क्या करो, इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज सक्सेसफुल है, वट एवर लाइक पैंडेमिक के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया अप्रोच जो था, सोशल बबल अप्रोच था पैंडेमिक के टाइम पे, कि सोसाइटी के अंदर जो डिप्रेशन चल रहा है, दैट हाउ डिप्रेशन शुड बी कर्व बिकॉज पीपल वर नॉट मीटिंग विद ईच अदर. तो सोशल बबल करके एक अप्रोच दिया था ऑस्ट्रेलिया ने. तो इन होल कंट्री, इन होल नेशन, इन होल वर्ल्ड, that kind of approach should be implemented. It was a call कि इस टाइप का अप्रोच है वो पूरी दुनिया में आपका होना चाहिए. तो अभी ये मिनोब्रो कॉन्फ्रेंस के भी अंदर ये डिस्कस हुआ कि वट एवर थिंग इज हैपनिंग गुड एट ग्लोबल लेवल, अगर ग्लोबल लेवल पे कुछ चीजें बहुत अच्छी काम कर रही है तो दोज थिंग्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री. राइट, कि अगर ऑस्ट्रेलिया केम आउट विद सोशल बबल नाम का बहुत अच्छा एक चीज लेकर आया है, तो वो बाकी सारे नेशंस के अंदर भी वो सारी चीजें होनी चाहिए. दिस इज समथिंग गोइंग ऑन. राइट, क्रिटिकल इवेल्युएशन कैन यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का. सी, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फायदे. राइट, तो अभी क्या है कि नथिंग इज परफेक्ट, though public administration in a way very good thing. Right, we discussed about the conferences, we discussed about 3 of the conferences, है ना. तो अभी how there are some loophole in public administration which is not affecting it in that positive way. तो अभी हमें ये सारे चीजें लेंथ में डिस्कस करनी है. So what are these things? Many thinkers believe that it is only amended and slightly improved version of old public administration. It does mean there are no major changes in the old public administration. You are just doing a little changes in the old public administration और उसी को आप continue कर रहे हो. Okay, Campbell believed, the Campbell was a political scientist. He believed that NPA is responsive to a different set of social problems from other periods. मतलब see, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर व्हाट यूज्ड टू हैपन, प्रॉब्लम पहले भी सॉल्व होती थी. दे यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम पहले भी, है ना. दे आर सॉल्विंग प्रॉब्लम नाउ आल्सो, बट इन दैट ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दे यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम. In new kind of public administration they are solving different kind of problem. So मतलब he is saying कि कुछ major changes नहीं आए हैं. पहले भी सोसाइटल प्रॉब्लम चेंज मतलब सॉल्व करने की बात होती थी पुराने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर. इन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो यू आर टॉकिंग अबाउट टू सॉल्व सम प्रॉब्लम, बट in new public administration you're talking about solving some problems. Okay, to but पहले क्या था, प्रॉब्लम्स डिफरेंट थी.
अभी प्रॉब्लम्स डिफरेंट है। तो इट डज मीन पहले भी आप सोसाइटी की प्रॉब्लम से डील कर रहे थे, अभी भी प्रॉब्लम सोसाइटी की प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, लेकिन जनरेशन टू जनरेशन प्रॉब्लम्स हैव चेंज्ड, सो योर वे ऑफ डीलिंग इज चेंज्ड। तो कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया है। ओके तो पहले जैसे हमारी कंट्री में क्या प्रॉब्लम थी, पहले हमारी कंट्री में मान लो कि वीट नहीं था, तो तो हम एक ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर आए, तो हमने एक प्रॉब्लम पर काम किया। अभी क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया है, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से साइड इफेक्ट है, देन वी आर गोइंग बैक टुवर्ड द जैविक कृषि। तो अभी हम लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम पीछे की तरफ जा रहे हैं कि चलो भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ चलो, इसकी वजह से तो बहुत हमें प्रॉब्लम। तो मतलब जनरेशन टू जनरेशन क्या है, प्रॉब्लम चेंज हो रही है। तो वट कैपेबल भी यही कह रहे हैं कि जनरेशन टू जनरेशन सोसाइटल प्रॉब्लम आर चेंजिंग, और उसमें कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोई फर्क नहीं आया है। इट जस्ट सोसाइटल प्रॉब्लम आर चेंजिंग और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सॉल्यूशंस आर चेंजिंग एंड दैट्स ऑल। तो मतलब कैपेबल के कहने का मतलब कि कुछ भी बड़े चेंजेस कोई अपने नहीं आए हैं, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। इट इज एंटी पॉजिटिव पॉजिटिविस्ट, इट इज एंटी थियरिटिक, इट इज एंटी मैनेजमेंट। मतलब आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट द लाइक एंटी गोल्स, है ना। तो इट इज सेइंग कि अभी इसमें काफी सारी मतलब चीजें हैं, जैसे मैनेजमेंट में ये नहीं होना चाहिए, और एंटी पॉजिटिविस्ट में था कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें क्या, एंटी का मतलब क्या हो जाता है कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये तो द पीपल आर सेइंग कि ये सारे इसके अंदर लूप होल्स हैं कि मतलब इट इज सेइंग कि प्रैक्टिकल बातें होनी चाहिए, थ्योरेटिक बातें नहीं होनी चाहिए, है ना। और इस तरह का अप्रोच लेना चाहिए, इस तरह का अप्रोच नहीं होना चाहिए। और एंटी मैनेजमेंट की जो आपका अभी हिरार्किकल मैनेजमेंट सिस्टम है, दैट मैनेजमेंट सिस्टम इज नॉट गुड, तो उसमें चेंजेस होना चाहिए। तो मतलब ही सेइंग कि अभी क्या है कि जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इट इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है ना। तो देर आर सेवरल प्रॉब्लम इन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। और इट इज अ टेम्परेरी फिनोमिनन विच कीप ऑन चेंजिंग, विच इन विच टेक्निक्स कीप ऑन चेंजिंग। मतलब आपका वही चीज है, बस बार बार उनमें टेक्निकल चेंजेस आते रहते हैं, राइट। सो क्रिटिक्स ओपाइन दैट न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज एनक्रोच्ड अपॉन द स्फीयर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल लीडरशिप। तो आपका जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, उसने चेंजेस किए हैं, मतलब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में, पॉलिटिकल प्रोसेस में, पॉलिटिकल लीडरशिप में। ओके मतलब चेंजेस हुए हैं, बट एक चीजें वैसे ही है जैसे ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थिंग्स वर देयर, और वैसा ही न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है। तो कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है। देर आर लाइक पैराडिज्म शिफ्टिंग और पैराडिज्म रिवोल्यूशन, ऐसा बोला जा रहा है। मतलब कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। वी कांट से दैट देयर इज सम रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चेंजेस थे वही हो रहा है, बस एक यू हैव क्रिएटेड काइंड ऑफ इल्यूजन कि हाँ ये चेंज हुआ है, वो चेंज हुआ है, थोड़ा बहुत आपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में चेंज कर दिया, ठीक है, आपने थोड़ा बहुत पॉलिटिकल प्रोसेस में चेंज कर दिया, लीडरशिप में चेंज कर दिया। मतलब यू हैव जस्ट मेड माइनर चेंजेस, और आप उसको बड़ा बड़ा इल्यूजन की तरह दिखा रहे हो कि हमने तो बहुत रेडिकल चेंजेस कर दिए, वी हैव डन दिस, वी हैव डन दिस। तो दिस इज नॉट समथिंग करेक्ट। मतलब दे आर ट्राइंग टू से दैट न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैव नॉट कम आउट विद समथिंग वेरी बिग थिंग। कुछ बड़ी चीज न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नहीं हुई है, ये चीज ये बोलने की कोशिश कर रही है। ओके ओके सो वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, और वी टॉक्ड अबाउट एंटी थियोरेटिक, एंटी पॉजिटिविस्ट, एंटी मैनेजमेंट। तो एंटी पॉजिटिविस्ट में हम वही हम चीज़ें मतलब डिस्कस, एंटी पॉजिटिविस्ट के बस एक मीनिंग एक रह गया था बताना, बाकी मैं आपको कंप्लीट बता चुकी हूँ। देखो एंटी पॉजिटिविस्ट का मतलब क्या होता है कि नाउ अभी जो चीज़ें होती है कि आप फील्ड कन्वर्जेशन के थ्रू आप चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हो, आप सर्वेस कर रहे हो, जैसे आपके सोशल इकोनॉमिक सर्वेज होते हैं, राइट। यू ऑलवेज नो देयर आर काइंड ऑफ सोशल, देयर आर काइंड ऑफ सोशियो इकोनॉमिक सर्वेज इन एवरीथिंग। ओके अभी जैसे आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट बनती है, आपकी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बनती है, उसमें पीपल सर्वे होते हैं, पीपल डाटाबेस आर बीइंग टेकन केयर ऑफ,
स्कूल से डाटाबेस लिए जाते हैं, आपके जो डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट जहाँ पे बनते हैं वहाँ से आपके डेटाज लिए जाते हैं, डेटाज कलेक्ट होते हैं, दैट हाउ सोसाइटी इज प्रोग्रेसिव, है ना। तो आपका जैसे ही आपका करप्शन इंडेक्स बनता है तो वहाँ पे भी सेम थिंग हैपन, आपका हंगर इंडेक्स बनता है तो सेम थिंग हैपन, तो ऑल दिस थिंग आर हैपनिंग इन दैट वे ओनली। ओके, सो थिंग्स आर गोइंग लाइक दैट ओनली, है ना। तो अभी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस एंड पॉलिटिकल लीडरशिप्स, ऑल दिस थिंग्स ऐसा ये बोल रहे हैं कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने मतलब बस एक नए तरह के थोड़े थोड़े इनमें चेंजेस किए हैं, कुछ बड़े चेंजेस नहीं किए हैं। एंटी पॉजिटिविस्ट इन द सेंस कि अभी क्या है कि मतलब पूरा फील्ड का सर्वे नहीं हो रहा है, आप थोड़े थोड़े लोगों को पकड़ते हो, थोड़ा थोड़ा कन्वर्सेशन करते हो। अब जो लोग आपने पकड़े हैं हो सकता है कि वो लोग हों जो कि डेवलपमेंट को शो नहीं कर रहे हो सकता है कि जो बाकी लोग हों वो डेवलप्ड हो। सो मतलब आप पूरी सोसाइटी में जब तक आप सर्वे नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ 3-4 हज़ार लोगों की बात मान के कैसे कोई चीज को सही मान लेते हो कि अच्छा ये एक प्रॉपर एनालिसिस है। लाइक इफ यू गो फॉर एनालिसिस ऑफ अ नेशन, है ना, तो वहां पे तो आपको पूरे नेशन के लोगों से बात करनी पड़ेगी ना। सो दे आर सेइंग दैट वी आर नॉट हैपिंग द न्यू एंटी पॉजिटिव अप्रोच ऑफ द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विच इज नॉट गुड। ओके, सो दे आर सेइंग कि अभी हमें जो ये एंटी हिरार्कियल वाली चीजें हैं जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है, तो दे आर नॉट गुड। द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑलवेज सेज दैट आई एम नॉट हैप्पी कि इस तरह से आप बोलते हो कि मतलब कि पहले ऊपर एक होगा, डीएम होगा, फिर सीएम होगा, ऐसे करके। लेकिन ये मानते हैं कि अगर हिरार्की होती है तो चीजें सेट होती है, तो दे आर नॉट हैप्पी कि दी एंटी मैनेजमेंट और एंटी हिरार्की की न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बात करता है। सो ऑल दीज आर द क्रिटिसिज्म अबाउट द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सो after that a kind of new basic theme of the new public management got arose, है ना। सो अभी उनको ऐसा लगा कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट लाना चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो शायद इतना वर्किंग नहीं है, तो 2000s के अंदर ही आपका न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है वो आपका आया। तो मतलब सबसे पहले इट गोट बर्थ इन 1980s, जैसे 1960s के अंदर आपका न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया था, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट गोट टुक बर्थ इन 1980s। लेकिन 2000s के अंदर आफ्टर कमिंग ऑफ आईटी रिवॉल्यूशन इट गोट मोर पॉपुलराइज्ड इन डेवलपिंग नेशंस, लेकिन इन डेवलप्ड नेशन इट गॉट पॉपुलराइज्ड इन 1990s और इन 1980s। तो 80s में इसका बर्थ हुआ आपका न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का। इट ब्रिटेन वॉज द फर्स्ट कंट्री विच इनिशिएटेड प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेस। तो आपके जो पीएसयूज है आज जो हम बेच रहे हैं, तो सबसे पहले इट स्टार्टेड बाय द ब्रिटेन ओनली कि डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू प्रॉपरली अगर जो एफिशिएंटली इफ समथिंग इज डूइंग वर्क तब तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो उसको बेच डालो, बात खत्म। एंड रिगनिज्म मतलब द न्यू काइंड ऑफ चेंजेस विच वर हैपनिंग इन द यूएसए। तो यूएसए के अंदर अ काइंड ऑफ रिगनिज्म वाज हैपनिंग। ओके, सो व्हाट इज रेगनिज्म? रेगनिज्म क्या है कि यूएसए के अंदर दिस थिंग गॉट वेरी पॉपुलराइज्ड। मतलब रीगनिज्म के अंदर क्या था कि मतलब यूएसए वांटेड कि हर चीज की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लाइक हमारा फिस्कल फेडरलिज्म होना चाहिए प्रॉपर। लाइक इन इंडिया ऑल्सो हमारी फिस्कल पॉलिसी के लिए पूरा एक डिसाइडेड होता है कि इतना, जैसे फिस्कल पॉलिसी के लिए एफआरबीएम एक्ट पास हुआ था कि फिस्कल पॉलिसी बननी चाहिए, है ना। जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल होना चाहिए कि वाई देयर इज नो फिस्कल कंट्रोल। सो ऑल दिस थिंग काइंड ऑफ थिंग एक्चुअली स्टार्टेड हैपनिंग इन यूएसए ओनली कि गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए। इफ देयर इज सम ब्लंडर हैपनिंग इन द इकोनॉमी देन गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल कि अभी आपका अगर फिस्कल जो बहुत ज्यादा आपका अगर फिस्कल जो आपका बजट है वो डिफिसिट में जा रहा है तो क्यों जा रहा है। तो देयर वो अर्लियर गवर्नमेंट वर नॉट रिस्पॉन्सिव, है ना। गवर्नमेंट क्या करती थी, अगर फिस्कल अच्छा नहीं चल रहा है तो आरबीआई से ज्यादा लोन ले लिया। अभी आरबीआई पुट लिमिट ऑन द गवर्नमेंट कि भैया आप लोन ज्यादा नहीं ले सकते। अभी यू से कि अच्छा आपने इतना इतना लोन ले लिया और बात खत्म, ऐसा नहीं हो सकता। अभी आप लोन ज्यादा नहीं ले सकते, एक लिमिट का हमसे लोन ले सकते हो। वी आर नॉट अलाउइंग टू टेक यू द लोन कि आप इतना ज्यादा लेंथ में आप हमसे लोन ले लो, उसके बाद में आप बोलो कि अच्छा चलो ऐसा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोन शुड नॉट बी इन दैट लेंथ, ठीक है। तो ऐसा किसने बोला? ऐसा बोला गया, आरबीआई ने बोला, ठीक है। ये सारी चीजें सबसे पहले इट गॉट स्टार्टेड इन यूएसए ओनली। यूएसए स्टार्टेड कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट थ्रू इट्स एजेंसीज।
Okay, so new agencies started forming in USA in 1980s and 90s, and these new agencies were making government accountable toward the public. Like these agencies started questioning government कि अच्छा भाई, why you are not doing properly work, why the work is not in favor of the people. तो new agencies were very very unhappy कि मतलब आप ऐसा काम नहीं हो रहा है, वैसा काम नहीं हो रहा है. तो अर्लियर अगर मतलब एजेंसीज नहीं है तो गवर्नमेंट एकदम लूजली वर्क कर रही थी कि ओके ठीक है, जैसा काम चल रहा है वैसा चलने दो. लेकिन जैसे ही न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आया, जैसे ही न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का एक जन्म हुआ, तब से कुछ नई चीजें स्टार्टेड अराइजिंग. बिकॉज न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की वजह से गवर्नमेंट स्टार्टेड बिकमिंग मोर अकाउंटेबल. तो पहला एक ब्रिटेन के अंदर थैचरिज्म आया था. ब्रिटेन के अंदर थैचरिज्म सेज दैट इफ सम पीएसयूज आर नॉट प्रॉपरली वर्किंग देन उसको प्राइवेटाइज कर दो. और यूएसए के अंदर रीगनिज्म आया विच सेज कि ऐसी आप एजेंसीज बनाओ विच मेक्स द गवर्नमेंट अकाउंटेबल. दैट इफ देयर इज स्लो जीडीपी ग्रोथ, then there should be an agency who asks the government why there is so slow GDP growth, है ना. GDP growth proper क्यों नहीं है. तो they wanted proper things, right. तो it represents a synthesis of public administration and private administration. It takes what and why from the public administration and how from the private administration. तो अर्लियर जब मैंने आपका पब्लिक मैनेजमेंट डायमेंशंस का क्लास लिया था तब भी मैंने आपको ये चीजें समझाई थी. वो क्लास मैंने इसीलिए आपको पहले लिया था बिकॉज दैट डायमेंशन जो टॉपिक है इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसको आपको बार बार रिवाइज करना है. और ये टॉपिक आपका जरूर आएगा एज फॉर आई वॉन्ट, मतलब सॉरी एज फॉर आई नो. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टूडेज गवर्नमेंट अप्रोच इज न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ओरिएंटेड, है ना. बिकॉज वी आर डीलिंग थ्रू द ई गवर्नेंस. एवरीथिंग इज ई, राइट. ई वे बिल आ गए हैं, ई गवर्नेंस आ गया है आपका, है ना. और आपकी ऑनलाइन कोचिंग होने लग गई है. काफ़ी चीज़ें आर गोइंग ऑनलाइन, राइट. आफ्टर स्पेशली आफ्टर डीमोनेटाइजेशन एंड पैंडेमिक थिंग्स, मैनी थिंग्स हैव बिकम ऑनलाइन. काफ़ी उसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी आ गई है. बहुत सारी पैसे जो गवर्नमेंट के वेस्ट होते थे, पेपर में पैसे वेस्ट होते थे, वो सारी चीज़ें काफ़ी रुक गई है. सो अभी क्या है, जो हमारा जो न्यू एरा जो अभी चल रहा है ना, वो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के आसपास चल रहा है. न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने पीछे छोड़ दिया है. अवर थिंग्स आर गोइंग टूवर्ड द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, क्योंकि वो सारा का सारा न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है दैट इज technology oriented, and in our society things are going technology oriented. So and this is something very good, right. So and that why from so okay. So ये लाइन आप जरूर याद रखना. ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की आपकी बहुत ही एक बेसिक लाइन है कि इट हैज टेकन व्हाट एंड व्हाई, दैट व्हाट गवर्नमेंट वांट टू डू, व्हाई गवर्नमेंट वांट टू डू. लाइक गवर्नमेंट वांट टू ओपन सो मेनी PSUs. व्हाई गवर्नमेंट वांट टू ओपन? to make India self-reliant in term of मेक इन इंडिया थिंग, है ना. मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना. और दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना. बट प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो प्रोसेस बताता है कि हाउ यू शुड डू द थिंग. बिकॉज वी ऑलवेज सी वन थिंग दैट गवर्नमेंट प्रोसेसेस आर ईदर वेरी स्लो और वेरी रिडंडेंट और वेरी करप्टेड और फुल ऑफ नेपोटिज्म. गवर्नमेंट के प्रोसेस कभी भी अच्छे नहीं होते हैं. तो प्राइवेट कंपनीज जो उनके प्रोसेस बहुत अच्छे होते हैं, दे आर गिविंग द आंसर ऑफ हाउ, दे आर सेइंग कि अच्छा ये काम करना है, दे आर सेइंग कि काम कैसे करना है. ये सारा कौन बता रहा है? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के थ्रू प्राइवेट जो आपकी इंडस्ट्रीज है वो बता रही है. ओके, सो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हैज 3 E. First is economy, eradication of waste. We want economy that eradicate the waste. अभी जैसे मतलब we have new term circular economy. If you remember circular economy, तो सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर क्या होता है? रीयूज थिंग्स, है ना. कि अगर आपकी कंपनी ने बहुत सारे प्लास्टिक्स जनरेट किए हैं,
तो आपकी कंपनी को इतनी को ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए कि वो आपके प्लास्टिक्स को किसी और चीज में फॉर्म कर दे ताकि एनवायरमेंट में पोल्यूशन ना हो. तो now companies are making companies are collecting their wrappers and making it into some pipes or anything. तो मतलब अभी क्या है कि न्यू टेक्नोलॉजी, जो न्यू इकोनॉमी ये कहती है कि आपका अगर वेस्ट भी हो रहा है ना, उसके अंदर भी आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाओ कि आप उस वेस्ट को खत्म कर सको, है ना. मतलब आप वेस्टेज को भी इकोनॉमी के अंदर यूटिलाइज करो. So this is kind of new economy in the new public management. Efficiency, that your services should be accurate, should be proper. Your people should not feel कि अच्छा हमारे लिए तो कोई काम ही नहीं कर रहा है. तो it should not be like that, right? थिंग्स शुड बी प्रॉपरली एफिशिएंट. और एफिशिएंसी में ये भी होता है कि इनपुट शुड बी लेस और आउटपुट शुड बी मोर. अभी एफिशिएंसी में क्या होता है कि लाइक आई एम टीचिंग यू फॉर 1 आवर, तो इन 1 आवर माई इनपुट मतलब मैं इतना ज्यादा अच्छे से आपको चीजें करवा दूं, है ना, तो आपका आउटपुट ज्यादा अच्छा आए. मेरी एनर्जी भी मतलब 1 घंटा ही लगी है, ज्यादा नहीं लगी, पर 1 घंटे के अंदर ही मैं आपको इतना अच्छे से समझा दूं कि आप वहां पे यू गेट बेस्ट ऑफ द मार्क्स. ओके. And then effectiveness, specification of objectives to ensure that resources are targeted on the problem solving, है ना. that resources जो होने चाहिए वो problem solving के आसपास होने चाहिए. okay. everything you create new, like अभी like robots बन रहे हैं, तो why robots are like being made. अभी जैसे in Kerala they made new kind of robot who will manually clean all of the gutters, है ना. तो गटर्स क्लीन करने के लिए इफ ह्यूमन इज गोइंग टू क्लीन द गटर, तो ह्यूमन क्या होता है कि उसका बॉडी डैमेज हो जाता है अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से. द ह्यूमन बिकम डिजीज या गटर में दब के मर जाते हैं वहां पे सफोकेशन की वजह से, नाइट्रोजन गैस की वजह से. इट ऑलवेज हैपन लाइक दैट. आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे. बट नाउ पीपल आर डेवलपिंग सम काइंड ऑफ रोबोट्स जो इन सब प्रॉब्लम से डील करे. टू डील ऑल दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे आर मेकिंग new robots or generating new resources, and that what we call the effectiveness. Objective क्या है? Objective is to solve the problem of this gutter and all, and the to ensure that resources are targeted on the problem solving. और जो sources भी हैं जो आपके problem solving की तरफ ही काम कर रहे हैं. So all these things are going on in our society. Okay. Okay. So we have discussed about the basic theme of new public management. I have given you introduction of new public management. तो अभी new public management को हम अपनी next class में थोड़ा और discuss करेंगे. उसके अलावा we will discuss more about the classical theories also. ओके. सो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है. आपका मेनोब्रुक कॉन्फ्रेंसेस एंड ऑल आपने बहुत अच्छे से मुझे लगता है समझ में भी आ चुका है. ये वर्ड है रीगनिज्म, थिएटरिज्म, ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ. न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन मैं दे चुकी हूँ. इन नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इन लेंथ, एंड उसके अलावा वी विल टॉक अबाउट सम थियरीज ऑल्सो, बिहेवियर थियरी, क्लासिकल थियरी. ओके. सो आवर सिलेबस ऑन द कंप्लीशन ऑफ ऑन द वर्ड्स ऑफ कंप्लीशन. ठीक है. तो वी आर गोइंग इन अ गुड इन अ गुड पेस, और बहुत जल्दी वी विल कंप्लीट आवर सिलेबस. ओके. थैंक यू. आई फील दैट योर लर्निंग इज गोइंग सो गुड, एंड February March में आपका प्रीलिम हो सकता है. सो बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छे से चीजें कीजिए. थिंग्स वुड बी मोर ऑफ गुड. ओके. थैंक यू. गुड बाय.